Hello everybody, welcome to another review episode of Coffee with Karan. ये है episode 9. Guys, can you believe it? हम 9th episode तक आ गए हैं and इस episode में करण जौहर को join किया है one of the more good-looking directors in Bollywood, वो है रोहित शेट्टी, and the very dapper and serious and debonair Ajay Devgn. So guys, like always, if you wanted a चटपटा, मसालेदार, spicy coffee with Karan episode, वो इस episode में आपको नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा. I mean, अजय देवगन था इस episode का guest guys, वो मिर्च मसाला कहाँ से देंगे? Come to think of it, पिछले हफ्ते आदित्य रॉय कपूर और अर्जुन कपूर आए थे. अगर वो इतना मिर्च मसाला नहीं दे पाए, तो इनसे क्या ही एक्सपेक्ट करोगे? I know रोहित शेट्टी was also there. रोहित शेट्टी एक non-filtered इंसान है. अजय देवगन के पास भी filter नहीं है, तो ये बहुत कुछ बोल भी सकते हैं, लेकिन ये episode ऐसा नहीं था. This episode was a lot of reminiscing कि old school Bollywood कैसा था, fraternity कैसे होती थी, इनकी दोस्ती कितनी गहरी है, कितने सालों से है. मतलब 3 decades, that's a long time. And मुझे तो personally नहीं पता था कि 3 decades long ये friendship है, लेकिन it makes a lot of sense because for some reason मुझे लगता है कि 90s is still just, around the corner, but no, it's been a while since the 90s. The 90s kid in me doesn't want to grow up, guys. करण जौहर ने कहा था इस एपिसोड के शुरुआत में कि he is a Gemini, you get 2 for the price of 1. तो ये सुन के मैं बहुत पर्सनली खुश हुई थी क्योंकि मैं भी एक जेमिनाई हूँ एंड मैं भी लोगों को यही कहती हूँ कि यू कैन नेवर बी बोर्ड. लेकिन करण जौहर, आपका ये जो सीजन है कॉफी विद करण का, I think a lot of people can find it boring क्योंकि एपिसोड पर एपिसोड आप सेम ही टॉपिक्स चूज करते हैं, सेम ही रिश्ते नाते की बातें होती हैं, सेम ही फर्टर्निटी की बातें होती हैं, सेम ही ट्रोलिंग एंड सक्सेस एंड फेलियर. लाइक करण जौहर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, व्हाट मोर डू यू हैव टू ऑफर अस? क्या आप ट्रोलिंग से इतना तंग आ गए हैं that you cannot give us anything more spicy in your coffee? Put some Baileys in your coffee and get your mojo back. So the beginning of the episode talks about Ajay Devgn's career. The beginning of it, Phool aur Kaante. I didn't realize Phool aur Kaante लम्हे के साथ आई थी. That's a long time ago. तो बेसिकली यही बातें हुई थी कि हाउ डिड यू फेयर एज अ डेब्यू. आप अनिल कपूर श्रीदेवी के अगेंस्ट आ रहे थे, यश चोपड़ा की कमबैक फिल्म थी. हाउ डिड यू फेयर? एंड अजय देवगन वाज लाइक, इट्स नॉट इन माय हैंड्स, आई वेंट विद द फ्लो. चली नहीं चली तो कोई और चल पड़ेगी. करण ने ये भी कहा था कि दिस काउच सिग्निफाइज द ओरिजिन ऑफ एक्शन. मतलब कि रोहित शेट्टी's father was well versed in action, same with Ajay Devgn's father, but the similarities don't end there. Like Karan Johar said, कि एक struggle story रही है. And once again, nepotism की बातें आई हैं. Ajay and Rohit ने ये भी कहा है कि people look at our success now, but don't realize the blood, sweat, and tears that went into getting us here. उनका खुद का hard work है, right? इनके खुद की मेहनत है, लेकिन इनके fathers ने, mothers ने बहुत सहा है और झेला है to bring them to this part. वीरू देवगन एंड रोहित शेट्टी के फादर ने बहुत स्ट्रगल किया, बिना पैसे के मुंबई पहुंचे हैं एज टीनेजर्स. अजय देवगन ने ये भी कहा कि his father was involved in gang wars and he got spotted in a fight. एक कोई इंडस्ट्री फेलो ने देख लिया उनको सड़क पे और उन्होंने कहा you fight well, come see me. और वहां से कहां से कहां पहुंच के वो. Same thing happened to Rohit Shetty's father. वो भी odd end jobs कर रहे थे as a teenager working at a restaurant and वो भी spot हुए because बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी उन्होंने. हाइट भी 6'3" थी, तो a muscular tall guy has a imposing look to him, तो वो फिर एक्शन कोरियोग्राफर बन गए. रोहित शेट्टी ने तो ये भी कहा है कि he lost his father at a very young age, मतलब in the 3rd grade, and the mother had to take care of everything. And मुझे ये नहीं पता था guys कि जो रोहित शेट्टी की mother है, she was also a stunt woman, so that's pretty cool. And you know what? Karan Johar made a really good point कि जो उनके father हैं, he would have really laughed as well जब Karan Johar पे flag bearer of nepotism का ये धब्बा लगा है. Because Karan Johar के father जो थे यश जौहर, उन्होंने भी बहुत struggle किया था. And people forget कि ये जो धर्मा productions है वो एक failing enterprise भी थी and Karan ने उसको rectify किया है and Karan has made it the success that it is.
तो यहाँ पे लोग सक्सेस देखेंगे, गाड़ी देखेंगे, बंगला देखेंगे, कपड़े देखेंगे, but they forget कि कितना काम ये लोग करते हैं. And I am not an apologist for nepotism, but I also feel like it is what it is. We can't change it. You can't change it. So why harp on something? It happens everywhere. तो जैसे कि मैंने कहा, a lot of repetitive themes once again were discussed in this episode. Success and failure was also discussed. And यहाँ पे रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने basically same ही चीजें कही हैं. You have to keep moving along. आप harp नहीं कर सकते success को लेके और ना ही failures को लेके. You just have to go to the next film. आई लाइक कि रोहित शेट्टी ने यहाँ पे सर्कस की फेलियर अपने ऊपर डाली है. जैसे रणवीर ने भी कहा था, आई हैड वेरी लिटिल टू डू विद दिस फिल्म. रोहित शेट्टी ने यहाँ कहा है कि आई वॉज द डायरेक्टर, आई फेल्ड इन द डायरेक्शन, दैट इज व्हाई द मूवी फेल्ड. लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि जब तक ये मूवी रिलीज हुई थी, आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग ऑन माई नेक्स्ट फिल्म. तो यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलता जहाँ पे आप बैठो, रोमिनेट करो कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ. एंड अजय देवगन ने ये भी कहा है कि बहुत से लोग आए हैं इंडस्ट्री में जहां पे उन्होंने इतनी सक्सेस नहीं देखी है. उन्होंने अपने आप के लिए टाइम पीरियड भी रखा था कि चलो 6 महीने में कुछ नहीं होता तो मैं चला जाऊंगा, लेकिन हर 6 महीने बाद कुछ ना कुछ हुआ है जहां पे उन्होंने लैच ऑन किया है. एंड दे हैव स्टेड इन मुंबई एंड दे हैव prolonged their career for decades. तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक फेलियर देखा है तो आपको अपना बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा. There's a lot of opportunity out there. तो करण जौहर जितना भी जेन जी मिलेनियल्स के साथ रहना रहना चाहे, the fact of the matter is कि he has a old school spirit to him. तो यहाँ पे old school बातें भी हुई हैं. अमरीश पुरी की बहुत सी बातें हुई हैं जहाँ पे अजय ने एंड करण ने कहा कि उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट की थी अमरीश पुरी की. द मैन ही वाज, जैसे वो लोगों की हेल्प भी करते थे, जैसे उनके दुख में सुख में शामिल होते थे. उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्टर्स होते थे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स पे करते थे, जो डायरेक्टर्स होते थे वो एक दूसरे की मूवीज देख के बहुत खुश होते थे, जो आजकल नहीं होता. इट लिटरली इज अ डॉग ईट डॉग वर्ल्ड. एंड ये पूरी दुनिया में है, पर खासकर मूवी इंडस्ट्री में तो है ही. And once again, यहाँ पे वो टॉपिक छिड़ा था कि अजय, you have done a lot of multi-hero films. Why do the guys, now not want to do multi-hero films? He said it's insecurity. लेकिन अजय देवगन ने ये भी कहा, forget the, multiple lead film. They can't even decide on which film they want to do. इतना वक्त लेके वो खुद की भी selection करते हैं. जहाँ पर अजय देवगन कहता है कि the new age actors overthink everything, रोहित शेट्टी said कि they're full of insecurities और इनको validation चाहिए from हर दूसरा बंदा, चाहे वो सोशल मीडिया पे कोई रैंडम बंदा ही ना हो. अगर वो उनके लिए अच्छा बोल रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगेगा. Another redundant topic, the PR topic, the paparazzi topic. रोहित शेट्टी ने कहा है कि ये लोग ऐसी weird statements निकालते हैं प्रेस में जहां पे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स देते रहते हैं और इतनी घिसी पिटी रटी हुई वो कमेंट्स होते हैं कि साफ पता लगता है ये एक PR मशीनरी चल रही है. अजय देवगन was basically like they're living in a bubble. ये खुद statements निकालते हैं, खुद की praises होती हैं उसमें and it makes them feel good. जहां तक paparazzi की बात है, अजय देवगन says कि मैं उनको बुलाता नहीं, मैं कहीं जाता नहीं, मैं कहीं अपनी फोटो खिंचवाता नहीं, ना ही मेरी बेटी को ये पसंद है. लेकिन मेरी बेटी की यहाँ फोटोएं निकलती हैं, वो अभी इंडस्ट्री में भी नहीं है, but she's all over the place and we cannot stop it from happening. Once again, Karan Johar यहाँ पे nepotism का लेके आता है कि the world has an issue with nepotism, but the world also wants stories and pictures of the star kids. Why is that? तो that's where the hypocrisy lies. आपको इनकी फोटोएं भी चाहिए, आपको इनके लिए इनके ऊपर स्टोरीज भी चाहिए, आपको इनकी मूवीज भी देखनी है, लेकिन आपको हेट भी करना है साथ में. एंड जहां अजय देवगन ने कहा कि his daughter hasn't really said कि उसको मूवीज में आना है, रोहित शेट्टी के सन को आना है. तो नाउ आई एम वंडरिंग क्या उस बेचारे को भी ट्रोलिंग एंड रिडिक्यूल सहनी पड़ेगी. जब काजल आई थी इस सीजन में, काजल ने कहा था कि अजय doesn't go do things, doesn't attend things because that's not his personality. वो कुछ चीजें अच्छी तरह से करता है, कुछ चीजें मैं करती हूँ. एंड यही बात अजय ने भी कही एपिसोड में, that he's awkward, he doesn't like leaving the house evenings पे, उसको crowds में जाना पसंद नहीं है, लोग उसको arrogant समझते हैं, but he's just an introvert. उसको नहीं comfort मिलता इन सबसे मिलने में. And he also said कि कोई मुझे बुलाता भी नहीं है अब, because they know he's not okay with it, he won't show up.
जहाँ तक अजय एंड रोहित की फ्रेंडशिप की बात है, आई थिंक इट्स अ प्रीटी सॉलिड रिलेशनशिप गाइस। एक तो इंडस्ट्री में इतने डेकेड्स लॉन्ग फ्रेंडशिप रखनी भी मुश्किल है, एंड देन व्हेन यू वर्क टुगेदर, वर्क के साथ सक्सेस एंड फेलियर्स आती हैं, तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। यहाँ पे दोनों ने कहा कि ups and downs in the films haven't affected them. They've been together since they were teenagers and they'll continue to be together. लेकिन हाँ, they do put their head down कि okay, let's go on to the next one. Let's go on to the next one. एंड जब करण ने पूछा था कि ओके पर व्हाट हैपेंस जब रोहित डिफरेंट एक्टर्स के साथ काम करता है, अजय डू यू फील टेरिटोरियल कि ये मेरा डायरेक्टर है, मेरा फ्रेंड है? And Ajay and Rohit were like, no, like we are always there for each other, and another movie will always be coming along. So I think they have a good head on their shoulders. अजय एंड रोहित ने ये भी कहा है कि दे आर मिडिल क्लास एट हार्ट, मिडिल क्लास वैल्यूज है घर में इनकी। गाड़ियां और बंगलों के साथ इतना चेंज नहीं होता, पर आई समवेयर अंडरस्टैंड दैट कि जो वैल्यू सिस्टम के साथ आप ग्रो अप करते हो वो आप अपने बच्चों के लिए भी रखना चाहते हो, इफ इट वाज अ गुड थिंग फॉर यू। लेकिन ये कहने के लिए बहुत आसान है कि हाँ गाड़ियां हैं, हाँ बंगले हैं, हाँ डिजाइनर कपड़े हैं, पर वी आर मिडिल क्लास एट हार्ट। एंड जब आपका मिडिल क्लास बैंक बैलेंस नहीं है ना, तो फेलियर्स से आप इतना अफेक्ट भी नहीं होंगे। रोहित शेट्टी ने तो यही कहा था ना कि हाँ जहां तक सलमान खान और अजय देवगन की बात है ना, whether failure, whether success, you will always find them sitting outside and cracking a joke like it's just another day. Yes, that's really easy to do जब आपको पता है कि you're not worried about your next paycheck, you're not worried about कैसे खिलाना है खुद को, अपनी फैमिली को। नहीं तो रेगुलर जो आम इंसान है वो तो फेलियर के साथ बर्डन्ड हो जाएगा। जब बात हो रही थी रोहित शेट्टी या अजय देवगन वर्किंग विद न्यू एज एक्टर्स, खासकर रणवीर सिंह, क्योंकि रणवीर सिंह बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है अजय देवगन से। आई मीन इट कैन बी मोर chalk and cheese than रणवीर एंड अजय। अजय ने कहा था कि रणवीर टॉक्स सो मच दैट आई ईदर टेल हिम टू शट अप और आई शट माय ईयर्स, और ये प्रैक्टिस मुझे काजल से ही मिली है बिकॉज हिज वाइफ इज आल्सो अ मोटर माउथ, शी टॉक्स अ लॉट एज वेल। एंड रोहित ने कहा था कि रणवीर सिंह की एनर्जी क्रेजी है, ही इज हाइपर, ही इज ऑल ओवर द प्लेस, लेकिन ही इज अ वेरी गुड बॉय एट हार्ट। उन्होंने कहा कि सेट पे हर एक बंदे को जाके ग्रीट करेगा रणवीर सिंह। ही मेक्स देम फील स्पेशल, ही सेज हाय टू एवरीवन, एंड दैट्स सो नाइस टू हियर। इस एपिसोड में दो गेम्स भी हुई थी। ओके एक तो बॉलीवुड क्विज एंड देन द सेकंड ऑब्वियसली इज द रैपिड फायर। जो बॉलीवुड क्विज था इट वाज बेसिकली नॉस्टैल्जिक, पुराने ज़माने की मूवीज़, पुराने ज़माने के गाने, कुछ 90s का ट्रिविया, कुछ 80s का ट्रिविया, कुछ 70s का ट्रिविया, एंड यहाँ पे रोहित शेट्टी एंड दैट बज़र वर विनिंग, 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 विनिंग। अजय देवगन kept saying, हाँ, बोल ले तू, हाँ, बोल ले तू, because अजय देवगन कहते हैं कि he requires some time to think of names. रोहित शेट्टी was like an encyclopedia. हर एक बात उसको पता है, हर एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म, सॉन्ग, he knows everything. जहां तक रैपिड फायर की बात है, it was pretty close. अजय देवगन won by like 4%, एंड मुझे लगता है कि ये सही डिसीजन भी था। Once again, रोहित शेट्टी अपफ्रंट है, उन्होंने अच्छे आंसर्स दिए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अजय देवगन, because उनका डिमीनर इतना इतना serious है, when he says these witty remarks, it really hits you differently. पहले क्वेश्चन से ही मुझे लगता है he won the rapid fire, जैसे कि रोहित शेट्टी ने भी कहा था। करण ने ये पूछा था कि who is your enemy in the industry, तो अजय देवगन ने कहा था once upon a time it was you करण। that was bang on, क्योंकि हमने कितनी बातें सुनी थी कि करण एंड अजय don't get along, करण एंड अजय don't get along। बैंकेबल स्टार की बात करें बिटवीन सलमान एंड शाहरुख, हालांकि अजय सलमान का फ्रेंड है, उन्होंने शाहरुख का नाम यहाँ लिया बिकॉज इस साल शाहरुख ने धमाल कर दिया है इन द बॉक्स ऑफिस, एंड उन्होंने ये भी कहा कि बिजनेस एक्यूमेन ही वुड लर्न फ्रॉम शाहरुख। वन थिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस लाई अबाउट, अजय देवगन ने कहा कि जब वो कहते हैं कि मैंने अपने चेहरे को टच नहीं किया है, दैट वाज रियली बैंग ऑन। अ टंग इन चीक आंसर जो अजय ने दिया था वाज इन रिगार्ड्स टू रोहित शेट्टी। जब करण ने कहा कि व्हाई डू पीपल फाइंड रोहित शेट्टी सो हॉट, तो अजय देवगन कहते हैं कि हिज हाइट, it's very convenient for a lot of things. When Karan asked Ajay ki if Kajal returned home from a holiday earlier than scheduled, what would she find you doing? He goes, I hope that never happens.
And then when Karan asks a reason why Kajol stops talking to Ajay in the house, he goes, I'm waiting for that day to happen. मतलब कि काजल इतना बोलती है कि बेचारे अजय देवगन इज लाइक चुप हो जा, चुप हो जा. रोहित शेट्टी की टर्न आती है. ही बेसिकली इज आस्क्ड अबाउट हिज पर्सनालिटी कि आपको एरोगेंट क्यों लोग समझते हैं, एंड ही सेज क्योंकि मेरे पास फिल्टर नहीं है. क्रिटिक्स ने क्या, व्हाट इज द रूडेस्ट थिंग द क्रिटिक्स हैव टोल्ड यू. वो कहते हैं क्रिटिक्स ने कभी भी अच्छी बात नहीं की है मेरे ऊपर. अजय का सक्सेस क्या है, हिज सिंसेरिटी. कौन सा एक्टर डायलॉग्स चेंज करता है, तो रोहित कहते हैं रणवीर. यहाँ पे अजय ने भी अग्री किया, करण ने भी अग्री किया कि रणवीर इज वेरी गुड एट एडिंग हिज ओन फ्लेवर टू डायलॉग्स. जब पूछा गया कि मेल्टडाउन किसका होता है बिफोर अ पिवटल सीन, रोहित कहते हैं रणवीर सिंह. जब करण ने पूछा कि रैप अप पार्टी में हु इज गोइंग बॉन्कर्स, तो रोहित कहता रणवीर सिंह. सो दैट वाज प्रीटी फनी. जब करण ने पूछा कि क्या ओल्ड क्लासिक्स का रीमिक्स एक इजी प्रमोशनल स्ट्रेटजी है, तो रोहित ने कहा हाँ. एंड आई अप्रिशिएट दैट, क्योंकि वो वही है, एक गिमिक है जो करण ने भी यूज किया हुआ है एंड रोहित ने भी किया हुआ है. पर आई डू वांट टू से जो सिम्बा में रीमिक्स किया था उन्होंने, लड़की आंख मारे, आई थॉट इट वाज सच अ गुड रीमिक्स. नहीं तो मुझे रीमिक्स इतने अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो वाला रीमिक्स मुझे बहुत अच्छा लगा था. करण ने ये पूछा रोहित को कि शुड फिल्म्स मेक यू थिंक, एंड रोहित शेट्टी ने कहा नो. लाइक मुझे कुछ थिंक नहीं करना है, मुझे बस एंटरटेन होना है. एंड ये एक रोहित शेट्टी टाइप फिल्म मेकर का ही आंसर हो सकता है, क्योंकि रोहित शेट्टी फिल्म्स डोंट मेक यू थिंक. आप अपना दिमाग घर पे छोड़ो एंड एक्शन देखो, गाड़ियों को उड़ते हुए देखो, cop verse अपना देख लो, and that's it. His movies are not poignant. His movies don't have a nice lesson. His movies aren't nuanced. तो obviously जो director इन सब में deal ही नहीं करता, वो क्यों कहेगा कि movies are there to teach a lesson. And then एक cop out answer भी था जब करण ने पूछा रोहित को कि who's the better actor, Ajay or Kajol. Obviously he didn't choose. तो अगर आपने नॉन कमिटल आंसर देना ही है, then you can't really win now, रोहित शेट्टी. So that's it for me, guys. इस एपिसोड में इतना कुछ था नहीं, फिर भी मैंने आके रिव्यू कर दिया है आपके लिए. आप बताना, are you a fan of Rohit Shetty's type of films? Are you a fan of Ajay Devgn? And are you a fan of Coffee with Karan or the new Coffee with Karan जो ये बन गया है without the mirch masala? And let me know, and I'll see you guys next week. लेकिन उससे पहले please like, share, comment, and subscribe. Bye bye.